Let's start the last segment of our interpretation from page number 125. This is segment number 4. Won't your mother be looking for you? Won't. Will not. Will not your mother be looking for you? Just see. The be is being used after two words. Will not be. But here, will not your mother be. Okay, this is a beautiful usage. Won't your mother be looking for you? क्या आपकी माँ आपको नहीं ढूंढ रही होगी? The conductor asked when he gave the girl her ticket. The conductor questioned her while giving her ticket to her. No, no one will be looking for me, she said. The bus started and again there were same wonderful sights. Sights, nazare, scene. And same wonderful scenes were there. Means the bus has started back now for the village. Wally wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Means wasn't bored in the slightest. Bored in the slightest. थोड़ी सी भी बोर नहीं हुई थी वो. She was not out of the context and greeted everything with the same excitement. And she greeted means she was happy to receive the things in the same way with the same excitement. Excitement means curiosity, you can say. उसी उत्सुकता के साथ या उसी अच्छेपन के साथ आप कह सकते हो. She had felt the first time when she was coming to the city for the first time. But suddenly she saw a young cow lying dead. अब कहानी खराब होती है यहाँ पे. But immediately she saw a young cow lying dead. एक जवान सी गाय को मरे हुए उसने देखा. वो पड़ी हुई थी by the roadside, just where it had been struck. जहाँ पर उसको टक्कर मार दी गई थी. टक्कर मार दी गई थी by some fast moving vehicle. ऐसा लगता है किसी तेज वाहन ने उसको टक्कर मार दी थी और उसकी मृत्यु हो गई थी. Isn't it the same cow? Isn't it the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. Means she questioned the conductor that is it the same cow? I hope this is the same cow which was just running in front of the bus when we were coming to the town. The conductor nodded. सिर हिला करके सहमति देना. आप कई बार जो है केवल सिर हिलाते हैं. Isn't that the same cow that ran? The conductor nodded. Conductor ने अपनी consent दी. The conductor agreed by shaking his head. And she was overcome with sadness. और उसी के साथ उसके ऊपर उदासी छा गई. Overcome with sadness. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago. वो एक बहुत ही प्यारी, सुंदर एक प्राणी थी. creature, any living being, just a little while ago, थोड़ी देर पहले वो एक बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी प्राणी थी. And now suddenly lost its charm and its life. और एकदम से lost its charm, उसकी ब्यूटी चली गई and life, और उसकी जिंदगी चली गई. And looked so horrible, और अब वो डरावनी सी लग रही थी. She was looking horrible. अब वो डरावनी सी लग रही थी. So frightening, so frightful, उससे डर लग रहा था. As it lay there like spread eagled, उसकी टांगे पसरी हुई सी जो है चौड़ी हो रखी थी. Spread eagles, ईगल के पंख जैसे होते हैं, ऐसे ऊपर को उसके पैर हो रखे थे. A fixed stare in its lifeless eyes, और उसकी आंखें खुली हुई थी और ऐसा लग रहा था वो किन्हीं चीज़ों को अभी भी देख रही हो. उनमें फिक्स स्टेयरनेस थी. अभी भी उसकी आंखें किन्हीं चीज़ों को देख रही थी. ब्लड ऑल ओवर, और हर जगह खून ही खून पड़ा हुआ था. The bus moved on. The bus moved forward. The memory of the dead cow haunted her. Haunted, पीछा करना. There are two words in English. One is linger. लिंगर होता है linger. लिंगर होता है किसी खुशी की चीज़ की आपको याद आना और उसकी थोड़ी सी याद सी सताना. For example, the memory of my, or the
my sister's memories are lingering in my mind. और एक होता है हॉन्टिंग. हॉन्टिंग में डर टाइप होता है, कोई चीज़ आपका पीछा करना, कोई याद आपकी पीछा करना. दैट इज कॉल्ड हॉन्टिंग. द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टिंग हर. उसका पीछा कर रही थी वो मरी हुई गाय की जो एक तरह से याद थी. डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म. डैम्पनिंग गीला कर रही थी, कम कर रही थी. डैम्पनिंग उस कम कर रही थी. वैसे मैंने आपको बताया था 9th क्लास में सबसे पहले मॉइस्ट होता है, MOIST मॉइस्ट. उसके बाद वेट होता है, उसके बाद डैम्प होता है, उसके बाद सॉरी वेरी फर्स्ट इज मॉइस्ट, देन डैम्प, देन वेट, देन waterlogged, and after that one flooding is there. Flooding. These are the 4-5 states of the water on the surface, and on the basis of that you can rate that what is the condition of the surface. So here the word which is used, dampening. Dampening means गीला कर रही थी या उसको कम कर रही थी. हाँ, enthusiasm, उसके हौसले को. She no longer wanted to look out of the window. Now she was not interested to look out of the window. She sat thus, glued to her seat. Glued, चिपक गई. वो अपनी सीट पर चिपक करके बैठ गई. Until the bus reached her village. जब तक कि बस गांव में ना पहुंच गई. At 3:40, 3:40 पर. She stood up, stretched herself. 3:40 पे वो खड़ी हुई. एंड स्ट्रेच हर सेल्फ. उसने अपने लेट मी चेंज द पेज. स्ट्रेच हर सेल्फ. देन सी टर्न द कंडक्टर एंड सेड. उसने अपने हाथ वगैरह को जो है थोड़ा सा खोला. एंड देन सेड टू द कंडक्टर, वेल sir, there are commas in between, mind it. Well, ठीक है sir. I hope to see you again. Beautiful sentence. I hope to see you again. मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूँगी. हम आपसे दोबारा मिलेंगे. Likewise, I hope to see you again. जो खास करके अच्छी सिविलाइज सोसाइटीज़ होती हैं उनमें जब आप मिलेंगे या जब उनसे आप दूर जाएंगे और जब आपको वो नमस्ते कहेंगे तो वो आपको ये बात कहेंगे नमस्ते के साथ साथ, hope to see you again. Yeah, see you again. Bye. Likewise. Okay, madam. He answered her. ठीक है मैडम, उसने उत्तर दिया. Smiling, बहुत ही स्माइल के साथ. Whenever you feel like a bus ride, come and join us. जब भी आपका बस में सवारी करने का दिल करे, आइएगा, हमारे साथ आइएगा. Come and join us. And don't forget to bring your fare. और अपना किराया लेकर आना मत भूलना. Fare, किराया. Don't forget to bring your fare. अपना किराया लेकर आना मत भूलना. She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. Means after jumping from the bus, immediately she went straight to her home. When she entered her house, she found her. There are two words used here. The first one is a home. The second one is house. What's the difference between the house and a home? House is basically a structure, and home is where we live. It is rather related to our sentiments and inner feelings, especially with love and affection what we get in our home. When she entered her house, she found her mother awake. Awake. She means she was not sleeping. Now you have to find out from the dictionary. I'm giving you a little bit dictionary work. Difference between wake and awake. And what the grammatical genre of that word will be, you just find out yourself. From the, yes, type in Google, go there to the Cambridge dictionary, find the pronunciation, grammatical genre and the meaning of that. When she entered her house, she found her mother awake. Means her mother was not sleeping and talking to one of Wali's aunts. Aunt is a very confusing word in English. It's used for Mausi, Chachi, Bua,
ये काफ़ी के लिए यूज़ होता है, ताई, मामी, लाइकवाइज। एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वलीज आंट्स, वो वली की एक आंट से बात कर रही थी। द वन फ्रॉम द साउथ स्ट्रीट, जो दक्षिण की एक गली में रहती थी। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स। चैटरबॉक्स मीन्स बातूनी थी। यस, ये आंटी वास्तव में एक बहुत बड़ी बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार जब बोलना शुरू कर देती थी तो अपना मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट, अरे तुम कहाँ थी, ब्यूटिफुल लाइन। एंड वेयर हैव यू बीन, अरे तुम कहाँ थी, उस आंटी ने कहा। व्हेन वली केम इन, शी स्पोक कैजुअली, उसने बस वैसे ही उसको वो बात कह दी, विदाउट प्रॉपर अटेंशन, नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई, और उससे जो है शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ए रिप्लाई। सो वली जस्ट स्माइल, वली ने थोड़ी सी स्माइल दी। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कॉन्वर्सेशन, और उसकी माँ ने अपनी बातचीत को जारी रखा। मतलब दे डिड नॉट बॉदर टू इंक्वायर फ्रॉम हर दैट वेयर शी वाज। यस यू आर राइट, हर मदर सेड, उसकी माँ कहती है हाँ तुम ठीक कहती हो, वो अपनी बातों में मस्त हैं। सो मैनी थिंग्स आर मिडेस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मध्य और जो है हमारे दुनिया से बाहर हैं। मिडेस्ट इन द मिडल ऑफ, मिडेस्ट इन द मिडल ऑफ, एंड द वर्ल्ड आउटसाइड, और हमारी दुनिया से बाहर हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर एक चीज़ के बारे में कैसे जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और अगर हम किसी चीज़ के बारे में जान भी जाते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और हम उसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम इसको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते हैं। कैन वी, क्या हम समझ पाते हैं। ओ यस, ब्रीथ वली, वली ने बड़ा सांस लेते हुए कहा हाँ समझ सकते हैं। व्हाट, आस्क्ड हर मदर, व्हाट्स दैट यू से, क्या कह रही हो तुम। ओह सेड वली, वली ने कहा आई वॉज जस्ट अग्रीइंग व्हाट यू सेड, अरे मैं तो आपकी बात से सहमत हूँ माँ, जो तुम कह रही हो। अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो चीज़ें बगैर हमारे नॉलेज के हमारे इर्द गिर्द होती हैं। कहने का मतलब ये है, वो उसकी मदर और वो लेडी इतनी अपनी बातों में मस्त हैं कि उनको ये भी पता नहीं है कि ये बच्चा बाहर घूम के आ गया है, और वो बातें कर रहे हैं बहुत हाई लेवल की। तो ये औरतों की बातें हैं जो इसमें दिखाया गया है कि जब औरतें बातें करने लगती हैं तो उनको ये भी ध्यान नहीं रहता कि उनके घर में खुद क्या हो रहा है, और वो बातें करती हैं पूरे ब्रह्मांड की। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल, अरे ये बहुत तेज लड़की है। चिट मीन्स वेरी स्मार्ट। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल शी इज, सेड हर आंट, एंड येट लुक हाउ शी pokes her nose into our conversation, pokes her nose, अपनी नाक अड़ाना हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में उंगली करना। जस्ट अ चिट ऑफ ए गर्ल, अरे ये तो बहुत तेज लड़की है। और देखो अब ये किस तरह से नाक अड़ा रही है हमारी बातचीत के अंदर। जस्ट दो सी वर ए ग्रोन लेडी, सी वाज होता है, बट हेयर वंस यू वांट टू सुपरस्क्राइब सर्टेन थिंग्स, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना चाहते हो, खास करके विश वगैरह में, जैसे इफ़ आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, इसी तरह से यहाँ पे भी यूज़ हुआ है। दो सी वर ए ग्रोन लेडी, ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत बड़ी बूढ़ी जो है औरत है। वली स्माइल टू हरसेल्फ, वली पास्ड ए स्माइल, शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल को पकड़ पाएं। बट देन देयर वाजंट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, परंतु उसके पकड़े जाने का कोई चांस भी नहीं था। क्या था? कुल मिलाकर के जो लेखक है वो आपसे पूछ रहा है, तो हमारा उत्तर है नहीं है, क्योंकि बच्चे का दिमाग बहुत तेज होता है, और यहाँ औरतें अपनी जो है वो बेहुदा टाइप की जो बातें हैं, फूहड़ टाइप की, उनमें फंसी हुई हैं, और उनको जब वो अपनी बातों में फंसती हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का सारा एनर्जी उसी में लगा देती हैं, उससे बाहर सोचती नहीं हैं। एक छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है उनको उनके घर में पता नहीं होता,
बातें करती हैं वो पूरे ब्रह्मांड की। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय के.एस. सुंदरम। इसका ट्रांसलेशन किया है, बेसिकली ये एक तमिल स्टोरी है, तमिलनाडु की, तमिल भाषा में लिखी हुई। के.एस. सुंदरम ने इसका ट्रांसलेशन किया है। इलस्ट्रेटेड बाय आर.के. लक्ष्मण। इलस्ट्रेटेड मीन्स ग्राफिक्स, जो ये कार्टून्स बनाए हैं। illustrations, pronounce with me, illustrations, illustrated by आर.के. लक्ष्मण। और आर.के. लक्ष्मण ने इसके ये कार्टून्स वगैरह और जो ग्राफिक्स इसमें यूज़ हुए हैं बीच बीच में, जैसे देखना पेज नंबर 123 के ऊपर भैंस जो वो भाग रही है बस के सामने, या पेज नंबर 120 के ऊपर वो कंडक्टर वाला सीन दिखाई दे रहा है आपको। तो ये सारे फोटोस, और जो है 117 पेज पे वली खड़ी हुई है गेट के ऊपर। दीज आर कॉल्ड इलस्ट्रेशंस, ग्राफिक्स और कार्टून्स यू कैन से, और विजुअल्स यू कैन से। So these were being made by R.K. Lakshman, the greatest cartoonist ever born on especially the Indian soil. So with this I finished the bus, this chapter. Madam rides the bus. Madam title was being given by the conductor to that 8-year girl whose name was Wali Amai. In short, the people used to call her Wali. There was no classmate of us. He used to stand there on the front doorway and looking everything, and she might be going outside also sometimes whenever she gets the time. And one day she plans to go to a town, and she plans meticulously and comes back, and even her mother was not been able to catch her. Those are the things being mentioned in this chapter. So with this I finish this chapter. Wait for the question answers.